Hello students, once again welcome to our YouTube channel and the website of Akhtar Delegated. Today I am going to teach you geography for the 7th class or 6th or 8th can also study it. In geography, the first chapter is environment. We all know that our whole surrounding, that is surrounded us, anything that you see in your surrounding, that include the environment. Anything, the water, the river, the things, the human, the animals, anything that you see in your surrounding is your environment. That means your environment refers to the all living and non-living things that you saw in your daily life. So it includes both the living and non-living things. Students, environment is not the narrow things. It is more wide than we thought. Everything, हमारे आसपास की वो सभी वस्तुएं जो आप अपनी डेली के दिनचर्या में देखते हैं, आप एक चेयर देखते हैं, आप एक टेबल देखते हैं, आप कुछ लोग देखते हैं, आप जानवर देखते हैं, आप पानी देखते हैं, आप पहाड़ देखते हैं, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, उन सबको मिला करके जो बनता है उसे हम अपना वातावरण या एनवायरनमेंट कहते हैं। और वही एनवायरनमेंट हमें जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, हमें दूसरों के साथ तालमेल बैठाने में, हमें हमारा फूड, हमारा शेल्टर, ये सब हमारे उस एनवायरनमेंट की देन है। सो आज हम इस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये एनवायरनमेंट हमारा दो तरह का है, एक जिसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं और दूसरा जिसे हम मैन मेड एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। वी ऑल नो दैट natural things made by the God or made by the nature, that is known as natural things, and the things made by the man are known as man-made things. So the natural environment include all the things that we can't make, that is made by the God or by the nature, like mountain, like water, like river, like any thing, the place where you live, anything. This is refers to the natural environment, and the environment that is made by us, that is known as man-made environment, like you use computer, you use books, you use pen, pencil, all things made by the human. So these all are known by man-made environment. So now we study about the biotic and the abiotic. These two types are the natural environment. सबसे पहले हम natural environment यानी कि प्राकृतिक वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। The natural environment is divided into two parts, the biotic environment and the abiotic environment. Our students, in junior class you have studied about the living things and the non-living things. You all have studied that living things that have life and the non-living things that have not life. So our biotic environment include all the living being on the earth, or all the things that is the living things that included biotic environment. हमारी पृथ्वी पर वो सभी चीजें जो प्राण है, जिसमें प्राण है, जिसमें जीवन है, उन सबको मिलाकर के जो एनवायरनमेंट बनता है उसे हम जैविक वातावरण या बायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, द प्लांट्स and all the things that have life, they made the biotic environment. Like that, this is abiotic environment. We all know that abiotic means that have not life. Abiotic means अजैविक, जिसमें प्राण नहीं है. So all the things that have no life, like mountain, river, the ground, or anything that have not life, they are included as abiotic environment. Okay? So these two terms have declared biotic environment and abiotic environment. Now we come to the natural environment. On the other hand, we classify the natural environment in different places and different parts so that we can study it easily. Okay? So we all know that in our earth or in the universe, everything is made by the God or the nature that we use for our survival. Okay? So our natural environment broadly divided into four parts: the lithosphere, the hydrosphere, the atmosphere, and the biosphere. So we will study one by one. Okay? Lithosphere. Our student, we all know that we live on the earth, and without earth
we can't live. For our living, for our survival, for our food, the earth is very important for us. This is the basic component where we live. हमारी पृथ्वी हमारे रहने की वो जरिया है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना संभव नहीं कर सकते. हमारा जो फूड है, हमारा जो वाटर है, ये सब इस पृथ्वी का पार्ट है. हमारा रहन सहन, हमारा शेल्टर, हमारी खान पान, ये सब इस पृथ्वी ने दिया है हमें. सो lithosphere it refers to the outermost layer of the earth. lithosphere को हम outermost layer of the earth कह सकते हैं. आपने पढ़ा होगा the outermost layer of the earth is called also crust. So the crust is lithosphere. यानी पृथ्वी का वह पार्ट जिस पर हम अपना घर बनाते हैं, जिस पर हम अनाज उगाते हैं, जिस पर हमारी नदियां हैं, वो सारा ऊपरी पार्ट लिथोस्फेयर के नाम से जाना जाता है. ओके, एंड क्यों जाना जाता है? बिकॉज लिथोस इज द ग्रीक वर्ड दैट मीन्स रॉक. So we all know that our whole earth is made up of rocks. So lithos means rocks and sphere, so it is known as lithosphere. So you understand about lithosphere, the outermost layer of the earth that we call crust, it also called the lithosphere, and we use it in many parts like our survival, our growing food, for the habitation, for growing crops. For many things we use the lithosphere. Okay, in lithosphere there are many other natural bodies like the ocean, like the river and the forest, and different things that we use in our daily life. Now we come to the second point, that is hydrosphere. We all know that hydro means water. So what is the hydrosphere? Students, our earth is also called the blue planet. Why? Because 71% of the earth is included by the water. हमारी पृथ्वी का 71% वो पानी से बना हुआ है, इसीलिए हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं. So all the water bodies present on the earth is known as hydrosphere. पृथ्वी पर जितने भी मात्रा में जल है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे वह ओशन में हो या वो ध्रुवों पर बर्फ के रूप में हो, हमारे रिवर में हो, हमारे नल में हो, जो भी पानी, जो भी वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर. ओके, सो ऑल द वाटर present on the earth is known as hydrosphere, including all the ocean, all the rivers, all the water like ice, water vapor or the water itself. Okay, so 71% of total earth is hydrosphere. So it is the vast things of here, and it is in different form like glacier, like ice, water vapor in the sky, cloud, and the water itself. Okay, now we come to the most important part, atmosphere. You all have studied in the previous classes that our earth is surrounded by the blanket of the air. हमारी पृथ्वी एक मोटे लेयर से, हवा के एक मोटे लेयर से ढकी हुई है, जिसे हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल के नाम से जानते हैं. And that's why we live on the earth, we survive on the earth. हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक मोटा सा लेयर है जो कि हमें ऑक्सीजन देता है, हमें डिफरेंट गैसेस प्रदान करता है सर्वाइवल के लिए, और इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है. सो द thick most layer of the earth that is surrounded the earth, that this is known as atmosphere. This is the most important part because without air we can't live. We all know that without oxygen, and the plant also need nitrogen, then other things also need hydrogen and the different gases. So these all gases include in the atmosphere. Atmosphere is a mixture of gases and it is the layer of the earth, and our earth is surrounded by the atmosphere so that we live here. So atmosphere is very important for us. There is the thickness of our atmosphere is 1500 kilometer. Okay, and this is divided into 4 parts that we study in the next chapter.
Okay, atmosphere and its parts we study in the next chapter. We know here you have to know that atmosphere is a mixture of air. हमारा जो वायुमंडल है वह 4 पार्ट में बटा है, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम ये जान लें कि हमारा वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर बना हुआ है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए, प्लांट्स के लिए और हमारे जितने भी कंपोनेंट हैं पृथ्वी पर, उन सबके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। सो एटमॉस्फेयर हमारे एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम आते हैं बायोस्फीयर पे। बायोस्फीयर का मतलब है जैव मंडल। मैंने पहले ही बताया कि जो थिंग्स है दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो बायोस्फीयर का मतलब है ऑल द लिविंग थिंग्स इंक्लूडेड इन बायोस्फीयर। जितनी भी जीवित चीजें हैं जिनमें प्राण है, जो सांस ले सकती है, जो जीवित है, दिस ऑल इंक्लूड टू मेक बायोस्फीयर। सो द बायोस्फीयर इंक्लूड विथ ऑल द स्फीयर। जो हमारा जैव मंडल है वो सभी जीवित प्राणियों का संग्रह है, और ये बायोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर के साथ मिलकर, लिथोस्फीयर के साथ और सबके साथ तालमेल बैठाकर बायोस्फीयर के जीवों को जीने में सहायता प्रदान करता है। सो दिस ऑल 4 पार्ट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द सर्वाइवल ऑफ बायोस्फीयर। बिना इन 3 पार्ट के बायोस्फीयर का जीवन संभव नहीं है, इसलिए इन चारों को मिला करके हमारा एनवायरमेंट या हमारा इकोसिस्टम बनता है। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, our ecosystem. Students, we all know that plant and animal can't survive without the environment. अभी मैंने बताया कि बिना जमीन के, बिना पानी के, बिना हवा के कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी तरह जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको भी यूज होने की जरूरत है, उनको भी रिएक्ट करने की जरूरत है, और वो जो उनका साइकिल है वो लिविंग थिंग्स के साथ तालमेल बैठाने से पूरा होता है। So what is ecosystem? Ecosystem is all the environment including together. जब environment के सारे component एक दूसरे पे आश्रित होकर, एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर इस पूरी environment को चलाते हैं या इस पूरी environment के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, this is known as ecosystem. Okay? जब ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर दे इंक्लूड टुगेदर एंड मेक अ सिस्टम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर द लिविंग थिंग्स, फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स, that is known as ecosystem. That means ecosystem include all the plants, all the animals, all the biotic and the abiotic component on the earth. Okay? Then we come to the next point, human environment. Our student, we all know that we, the human, are the most precious species on the earth. हम मानव इस पृथ्वी की सबसे बहुमूल्य प्रजाति हैं, सबसे समझदार प्रजाति हैं। सो हमारा एक्शन एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। अगर हम इकोसिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना काम करते हैं तो यह हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है, लेकिन जब हम उस कोऑर्डिनेशन को खराब करते हैं तो यह हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। सो ह्यूमन एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम को संभालने के लिए। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द ह्यूमन एक्शन। जितनी भी मानव से संबंधित कार्य हैं उन सबको मिला करके मानव वातावरण का निर्माण होता है। आप रेलवे में जाते हैं, आप बैंकिंग का यूज करते हैं, आप कंप्यूटर यूज करते हैं, आप खाना खाते हैं, आप सोते हैं, आप रहते हैं, ये सारी चीजें मिला करके हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट बनता है। दैट मीन्स ह्यूमन एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द एक्शन डन बाय द ह्यूमन। सो जब हम एक्शन करते हैं, जब हम नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करते हैं, जब हम एनवायरनमेंट का उपयोग करते हैं, तो हमारा जो एक्शन है वो फेवर में होना चाहिए। अगर हम एनवायरनमेंट के फेवर में एक्शन ना करें तो आज हम बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, जैसे कि पॉल्यूशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ
ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, और द ओजोन लेयर डिप्लेशन, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी हैव डन। हम ह्यूमन ने इसे खराब किया है। बहुत सारी गलत चीजें हैं जो हमारे काम की वजह से, हमारे कार्य की वजह से इफेक्टेड हुई है। सो इफ वी डू द राइट एक्शन टू द इकोसिस्टम विल हेल्प अस, बट इफ वी डू रॉन्ग विद द इकोसिस्टम, सो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय अस। इसलिए हमारा जो ह्यूमन एनवायरमेंट है, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, वो सब हमारे इकोसिस्टम, हमारे एनवायरमेंट के फेवर में होना चाहिए। क्या हमारी जो पृथ्वी है वो कितनी सर्वाइवल है, हमारी पृथ्वी को कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना उसे पेड़ चाहिए, कितना पानी होना चाहिए, पॉल्यूशन का दर क्या होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। और अगर हम उसके अनुसार एक्शन करेंगे तभी हम इस पृथ्वी को सुंदर बना पाएंगे और अपने जीवन को जी पाएंगे। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वी फेस टुडे, दैट इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। मैंने भी बताया कि हमारे गलत एक्शन से हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूटेड होता है और वो पॉल्यूशन हमें को इफेक्ट करता है। सो एडिंग एनी डिस्टर्बेंस इन द एनवायरमेंटल पार्ट इज नोन एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। किसी भी अकारण की चीजें या किसी भी गलत चीजों का हमारे एनवायरमेंटल पार्ट में मिक्सअप हो जाना, ये हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहलाता है। जैसे हम हाइड्रोस्फीयर को गंदा करते हैं, पानी को गंदा करते हैं, हम लिथोस्फीयर में हम बहुत सारा खाद का उपयोग करके अपने लिथोस्फीयर की उर्वरा शक्ति को, जो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारे जमीन का, हम उसको खराब करते हैं। हम डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्रीज से इतने सारे धुएं निकालते हैं, इतने सारे हम गलत एक्शन करते हैं, हम पेड़ काटते हैं जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होता है। उसके अलावा हम डिफरेंट जो हमारे जानवर हैं हम उनका शिकार करते हैं या हम उन्हें असमय मारते हैं, उनके दांत के लिए, उनके सिंग के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स के लिए। जब हम उनको अत्यधिक मात्रा में मारते हैं तो हमारा बायोस्फीयर डगमगाता है। सो ये जो कोऑर्डिनेशन है, इस कोऑर्डिनेशन में जब बाधा आती है हमारे एक्शन से, दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, द total theme of this chapter is we have to coordinate with our environment and we have to make it pure. We have to make pure our atmosphere, we have to make pure our lithosphere, we have to make pure our biosphere. Then we live, then we survive, and then we live a happy life. Thank you. Have a nice day.